Hello everyone and welcome back to the channel. So we are here with another session for your UPSC CSAT comprehension practice, and this is part 18 of these lectures. So guys, in this series we have covered all the previous year questions. You can watch all the previous sessions, and now we are now we are doing random practice passages from the previous year questions so that you are able to understand the right level of questions and the right way, the right strategy to solve such questions, and we are helping you with these passages. So guys, don't forget to like the session and don't forget to subscribe to our channel if you're new here, and you can get the PDF of this session if you want from the Telegram channel. The link for our Telegram channel has been given in the description of the video. So let's begin with number one. We have launched a comprehensive guidebook for your preparation. Now guys, if you're starting out with CSAT preparation, this comprehensive guidebook will definitely help you in your preparation. Now this guidebook entails everything from syllabus to strategy to sources to prepare for all the subjects that there are in your UPSC CSAT part. So go download this ebook. This ebook is absolutely free of cost. The link has been given in the description of the video, so go check it out and get benefited from it. Alright guys, so let's start with the passage. First of all, let's discuss the homework passage that I gave you yesterday. In yesterday's session, I gave you a homework, and this was the passage. So let me give you the solution for this. We had to find which of the given statements act as a constraint in using biomass as a fuel for power generation. So it was a small passage. Some liquid biofuels such as corn-based ethanol, mainly for transport. Some liquid for biofuels such as corn-based ethanol, mainly for transport, may aggravate. It can basically, it can make it worse. So it may aggravate rather than ameliorate carbon emissions. So it can increase carbon emissions instead of ameliorating on a life cycle basis, on a broad basis. So corn-based ethanol is not sustainable. That's what he's saying. Second generation biofuels based on lignocellulosic feedstocks such as straw, bagasse, grass and wood, they hold the promise of sustainable production. Now, the second generation biofuels, they hold the promise of sustainable production that is high yielding, and they emit low levels of greenhouse gases. So they are high yielding, their yield is high, and they emit low levels of greenhouse gases, but these are still in the R&D stage, research and development stage. So what are the constraints in using biomass as fuel for power generation? Lack of sustainable supply of biomass. So do you think there's not enough supply? So see, it's not about the supply. He's not even said, he has not mentioned anything about the supply of biomass. So that is incorrect. Biomass production competes with food production. So I don't think it has anything related to food production or anything else, because we are talking about straw, bagasse, grass, wood, which is not used for food production. So we can also eliminate that. Third is bioenergy may not always be low on life cycle basis. Yes, see, bioenergy may not always be low carbon. So he said that in first sentence, like corn-based ethanol, they may aggravate the carbon emission. So it's not always, it may not always be low carbon on a life cycle basis. So only option 3 was correct. So option B was the right answer here. सो ऑप्शन बी वॉज द आंसर फॉर योर होमवर्क पैसेज. चलो गाइज, तो आज के कुछ नए पैसेजेस हम डिस्कस करते हैं. पहले छोटा सा पैसेज है. दिस पैसेज रिलेट्स टू व्हाट. तो पहले हमें ढूंढना है. अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट. एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इस पर डिपेंड करते हैं. A successful democracy depends upon widespread interest and participation in politics, in which voting is an essential part. कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल कब होती है? जब लोग इंटरेस्ट लेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स में, और जिसका सबसे इम्पोर्टेंट या बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वोटिंग, वोट करना. बहुत सारे लोग वोट नहीं करते, सोच के हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, बट वोटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट component of politics. To deliberately refrain from taking such an interest, कि पॉलिटिक्स में अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे जानबूझ के, एंड फ्रॉम वोटिंग, और वोटिंग नहीं करोगे, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इम्प्लाइड एनार्की. कि मतलब आप अपने आप में एक एनार्की करना चाहते हो कि देश में कोई व्यस्त मतलब कोई सिस्टम ऑर्डर ना हो, कोई सिस्टमैटिक गवर्नमेंट ना हो. तो इससे आप क्या चाहते हो कि आप एनार्की हो जाए. तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स. अगर आप नोटा हो, तो अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते पॉलिटिक्स में, अगर आप वोट नहीं करते हो, तो इट इज़ टू रिफ्यूज़ वंस पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप वोट नहीं करते तो आप अपनी पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को
रिफ्यूज कर रहे हो, मना कर रहे हो, वाइल इंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ अ फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी, जबकि आप एक फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी के बेनिफिट्स एंजॉय जरूर कर रहे हो, लेकिन आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वही है ना, ड्यूटी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ड्यूटी क्या है और आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज वाली बात है। तो राइट्स आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन ड्यूटी है वो आप नहीं करना चाह रहे, तो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो ही इज टॉकिंग अबाउट टेकिंग इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड नेसेसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज टू वोट। तो उसने ऑप्शन दिया था, पैसेज रिलेट्स टू ड्यूटी टू वोट, राइट टू वोट, फ्रीडम टू वोट, या राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। सी राइट सभी को है पार्टिसिपेट करने का, वो बोला इंटरेस्ट लेना चाहिए, फ्रीडम भी सभी को है, राइट टू वोट भी सभी को है, लेकिन ही इज टॉकिंग अबाउट योर ड्यूटी टू वोट। सो इट इज योर ड्यूटी to go and vote and to select a logical गवर्नमेंट सो दैट इट कैन गिव यू अ फ्री पॉलिटिकल सोसाइटी, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। और अभी इलेक्शंस हैं ही, तो आपको ये पैसेज उसके रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी है, तो जाना ज़रूर और वोट ज़रूर करके आना। तो ऑप्शन द आंसर वाज ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अबाउट योर ड्यूटी टू वोट। सेकंड पैसेज करते हैं गाइस, उसने आपको कुछ असम्पशंस दी हैं और उसने पूछा कि इनमें से सही असम्पशन क्या बनना चाहिए, तो एक बार पैसेज पढ़ते हैं पहले। द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज़ इन स्टोर फॉर मैनकाइंड इज नॉट ऑफ कोर्स एन अक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल पोजेशंस। कि उसने बोला कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो हमने की है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, ठीक है, वो मटेरियल पोजेशंस नहीं है कि आप कितना पैसा या कितनी चीज़ें जोड़ लेते हो। द अमाउंट ऑफ दीज कैन बी इफेक्टिवली एंजॉयड बाय वन इंडिविजुअल इन वन लाइफ टाइम इज़ नॉट ग्रेट। कि आप कितना ही पैसा उड़ा लोगे, कितना ही पैसा खर्च लोगे एक लाइफ टाइम में, कितना ही मटीरियलिस्टिक पोजेशंस जोड़ लोगे अपनी लाइफ टाइम में, उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। बट देयर इज़ नॉट द सेम नैरो लिमिट टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इंजॉयमेंट ऑफ लेजर। लेकिन इससे ज़्यादा क्या है, आप अपना जो लेजर टाइम है, स्पेयर टाइम है, उसको आप कितना इंजॉय करते हो, कितना यूज़ करते हो, वो उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं इंजॉयमेंट या ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट देता है। द गिफ्ट ऑफ लेजर मे बी अब्यूज्ड बाय पीपल हु हैव हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग यूज़ ऑफ इट। कि भाई जिन लोगों को लेजर टाइम का यूज़ करना नहीं आता, वो इस गिफ्ट को अब्यूज़ भी कर सकते हैं, खाली टाइम में वेस्ट कर सकते हैं, अपने टाइम को ख़राब कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, द गिफ्ट ऑफ लेजर मे बी अब्यूज्ड बाय पीपल हु हैव हैड no experience of making use of it. Yet, the creative use of leisure by a minority in societies has been the mainspring of all human progress beyond the primitive level. कि ज़्यादातर लोग जो क्रिएटिव होते हैं, जो अपने लेजर टाइम को सही तरह से यूज़ करते हैं, वही ह्यूमन प्रोग्रेस में का हिस्सा बनते हैं। तो बेसिकली क्या करेगा यार, प्रोग्रेस से आपको मटेरियल पोजीशन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए अपने ज़्यादा, मतलब उन चीज़ों पे जो आपको कंटेंटमेंट देती हैं, जैसे लेजर टाइम को आप सही तरह से यूज़ करोगे, प्रोग्रेस करोगे, तो आपको मैनकाइंड को, सोसाइटी को और आप बेहतर बना पाओगे। सो व्हाट आर द assumptions that have been made? People always see द लेजर टाइम एज अ गिफ्ट एंड यूज इट फॉर एक्वायरिंग मोर मटेरियल पोजेशंस। ये एक्सट्रीम ऑप्शन होते हैं गाइस, कि लोग हमेशा लेजर टाइम को गिफ्ट समझते हैं और उनको मटेरियल पोजेशन जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, वो ऐसा सच नहीं है। ठीक है, वो उसने कहा है कि माइनॉरिटी है जो ऐसा करती है, जिससे ह्यूमन प्रोग्रेस मिलती है। सेकंड, यूज ऑफ लेजर बाय सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग्स हैज बीन द चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। यस, ये जो उसने बोला, येट द क्रिएटिव यूज ऑफ लेजर बाय माइनॉरिटी इन सोसाइटीज हैज बीन द मेन स्प्रिंग ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस बियॉन्ड द प्रिमिटिव लेवल। सो ही इज सेइंग the same thing, use of leisure by some people to produce new and original things has been the chief source of human progress. So option 2 is correct, assumption 2 is valid, so option B is the right answer here. So you have to look at the passage very critically and analyze the options very carefully to get to the answer. चलो guys, let's discuss one more passage for today. इस ये भी assumption based ही questions है, तो इसको try करते हैं। There is more than a modicum of truth in the assertion that a working knowledge of ancient history is necessary to the intelligent interpretation of current events. कि भाई इस बात में सच्चाई से ज़्यादा बहुत कुछ छिपा हुआ है। जब कोई कहता है कि भाई अगर आपको हिस्ट्री की वर्किंग नॉलेज नहीं पता, तो आज जो हो रहा है करंट इवेंट्स में, आप उनको सही तरह से समझ नहीं पाओगे। तो वर्किंग नॉलेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इज नेसेसरी टू द इंटेलिजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ करंट इवेंट्स। बट द सेज हु अटर्ड दीज वर्ड्स, बट दिस साधु ने ये शब्द कहे, of wisdom might well have added something on the benefits of studying particularly the
famous battles of history for the lessons they contain. कि उस जिसने ये बात की उसको ये भी उसको ये भी कहना चाहिए था कि जो बैटल्स हुए हैं पास्ट में उनको ज़रूर स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो लेसन छुपे हुए हैं फॉर दोज ऑफ अस हु एस्पायर टू लीड और एस्पायर टू लीडरशिप, कि जो लीडर बनना चाहते हैं उसको ज़रूर पास्ट बैटल ज़रूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है. सच अ स्टडी विल रिवील सर्टन क्वालिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स. ऐसी स्टडी से क्या होगा, ऐसी क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स पता चलेंगे विच एनेबल्ड द विनर्स टू विन एंड सर्टन डेफिशिएंसीज विच कॉज द लूजर्स टू लूज. कि भाई किस वजह से जीतने वाले जीते और किस वजह से हारने वाले हारे, ये पता लगता है इस स्टडी से. एंड द स्टूडेंट विल सी दैट द सेम पैटर्न रीअकर्स कंसिस्टेंटली. और स्टूडेंट को पता चलेगा कि यही पैटर्न रीअकर करता है अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द सेंचुरीज. मतलब आप अपने गुड यू नो गुड मतलब क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स आप सीख सकते हो हिस्ट्री से, और कुछ जो कमियां हैं उनको भी आप समझ सकते हो कि आपके अंदर वो कमियां नहीं होनी चाहिए. सो ये कह रहा है कि वो अपनी हिस्ट्री की समझ बहुत ज़रूरी है अगर आपको लीड करना है तो व्हाट आर द assumptions? A study of the famous battles in the history would help us understand the modern warfare. Okay, studying the history is essential फॉर एनी वन हु एस्पायर्स टू बी अ लीडर. ये तो उसने बोला है, सेकंड बिल्कुल वैलिड है. अब ए जो ऑप्शन है वो देखते हैं. स्टडी ऑफ द फेमस बैटल्स इन हिस्ट्री वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड द मॉडर्न वॉरफेयर. वो मॉडर्न वॉरफेयर को समझने में हेल्प करते हैं कि क्या होना चाहिए. तो आई थिंक ये भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है यहाँ पे. सो आई थिंक बोथ द अजम्पशंस आर वैलिड है. सो आई थिंक ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर द राइट अजम्पशंस है. गाइस ये थे आज के आपके प्रैक्टिस पैसेजेस, शॉर्ट बट टू द पॉइंट, और ये आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रैक्टिस में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में कि पैसेजेस को कैसे सॉल्व किया जाता है. सो दैट इज इट फॉर दिस वीक गाइज. आई विल सी यू अगेन विद मोर सच सेशंस नेक्स्ट वीक. बट इफ यू वांट टू जॉइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें आपको हम सब डे 1 पे कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में देते हैं विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस. इसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज देते हैं जिसमें सेक्शनल टेस्ट होते हैं और आपके फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं आपके एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए. वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं और लाइव रिवीजन क्लासेस होती हैं जिसमें आप अपने डाउट्स फैकल्टी से लाइव पूछ सकते हो. सो कम जॉइन अस इन दिस कोर्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी विद इन 100 hours. So you can still prepare for CSET, and you can score very well, and without any without any painstaking effort. So you can do it with us. Just join us our course, and there's a special discount going on. So go check out that and you will definitely get benefited from it. The link for our course has been given in the description of this video. So go check out the description and go find out the link and get benefited from it. So that was it for this week, guys. I'll see you again next week with more such sessions, with more such passages to help you out in your journey. If you have any further doubts, if you have any further queries, you can always call us on this number, that is 8146207241, during the office hours, or you can also drop us an email on this address, that is hello@edutap.co.in. This is our email ID. You can drop us an email if you have any other thing that you wish to contact us for, and we'll be more than happy to serve you. So guys, having said that, I'll take your leave for today. I wish you all the success in your endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, thank you so much once again, and happy learning to all of you. Take care. Bye bye. Have a good day.